Good morning. Today again I will teach you about MySQL, and previous class I have given you certain number of commands. Today I will go for the commands such as sorting also, and then we'll go for the next which I told you about the group by and all, okay, distinct, group by, etc. So I'm sharing a screen for you, and then I will start teaching you MySQL. 11th class, whatever I've taught is important. Now today again I will teach you about Python programming. Sorry, about MySQL. So screen is shared, and I'll start MySQL for you. And MySQL 8 now I'll use. The password is root, you know. MySQL started. I think is थोड़ा सा इसका font बढ़ा लूँ, layout, font, Lucida console 24 is okay. ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा. Okay, so show databases. Employee use किया था, I think. Use Yes, sir. employee show tables. Select asterisk from EMP. So first I will insert some more data in it. Insert into EMP values. Okay. So values में I will take ENO, ename and salary. Sorry, ये वैल्यू यहाँ आनी चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक है. ये चलता नहीं है क्या इसमें? ENO, ename, cell, values, एम्प्लॉय नंबर 3 ले लेता हूँ, बीबी कर देता, कुछ भी नाम कर लो. सिटी नहीं चाहिए, एक और ले लो, एम्प्लॉय नंबर 4, इसकी सैलरी 5 में कर दो कुछ. ठीक है, एक और ले लो, इस बार सिटी भी लेंगे. तो जब पूरी वैल्यू लेनी हो तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है. फोर नहीं हो सकता है, प्राइमरी की है. 5 आई थिंक ऑल्सो, नहीं 5 कर लेते हैं. ओके, देन आई टेक 6 ऑल्सो. आई टेक जयपुर. थोड़ा सा डेटाबेस बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको डिस्टिंक्ट वगैरह पढ़ाने जा रहा हूँ. ठीक है, अब अगर आप देखें, सेलेक्ट, सबसे पहले डिस्टिंक्ट से स्टार्ट करेंगे. सेलेक्ट सिटी फ्रॉम EMP. फ्रॉम की स्पेलिंग नहीं सही लिखी. तो आप देखिए, दिल्ली, कोटा, 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 दिल्ली एंड जयपुर, these results have come. Okay, now distinct shows the different or distinct values. Select, when I write distinct city from EMP, the result is coming as Delhi, Kota and Jaipur. Result is coming here as Delhi, Kota and Jaipur. Is it clear? Yes, sir. Meaning of districts, Anidya? Yes, sir. Okay, now next we are going for group by. So select, now no need of writing city, distinct city from EMP, and then I write it here, group by. एंड ग्रुपिंग उसी, अगर सपोज हम ग्रुप बाय ENO करते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि
ये तो सब अलग अलग ही है ना बेटा, तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसलिए जिससे डिस्ट्रिक्ट वैल्यू आए उसको करना चाहिए, ग्रुप बाय सिटी। अब आप दोनों पे ध्यान देना, यहाँ पे दिल्ली, कोटा एंड जयपुर, ध्यान देना। हियर दिल्ली, कोटा, जयपुर, द सेम रिजल्ट कमिंग। Select city from EMP, group by city, Delhi, Kota and Jaipur. Got it? सर So either ये भी you मतलब use लिस्टिंग की distinct तरह ही होगा। or you use group by, it basically groups. अब इसमें बहुत सारे functions, group functions use होते हैं. So first you write all these group functions. So you must be aware of it. If you are not, you write some. Sum function, these are the group functions. Sum function is used to get the sum value. जैसे मैं यहाँ लिख दूं, select sum cell from EMP, तो जितनी भी सैलरी थी इन सब का सम आ गया, that is 2 3, null is excluded. Okay, now next I am going to take here, select, next is your average. एवरेज पूरा लिखते हैं, एबीजी लिखते हैं, एवरेज पूरे लिखते हैं शायद, देखते हैं। AVG used to get the average value 1 2 3 4 5, that is your result is 2 3 4 5, आप चेक कर सकते हैं। select 2 3 4 5 divided by 1 2 3 4 5, क्या हो गया, गलत लिख दिया क्या? सम कितना आया था? 23545 है। 2 2 3 5 4 5, ओके 2 3 5 4 5, so 4709 4709. So average is used to get the average value. उसी तरह max to get the maximum value, to get the maximum value आसान है, जल्दी जल्दी कर दूं। max, so maximum, min to get the minimum value. Okay, max to get the minimum, max to maximum, min to min. Next is your count, ये बहुत important है, इसको ध्यान से पढ़ना। Used to count number of rows, used to count number of rows. Now question आता है, differentiate between count city, count cell, differentiate between select count cell from EMP and select count asterisk from EMP. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? What is the meaning of asterisk, Anidya? So, all values will be selected, but All in columns, I okay. think Asterisk means in all SAL columns. the Now किसी भी null रो को values बनने will के लिए not be एटलीस्ट taken. 1 कॉलम की वैल्यू होना कंपलसरी है, ठीक है ना? अगर कोई वैल्यू नहीं, Yes, सभी sir. नल है, तो दैट्स नॉट अ रो। एक रो में एक वैल्यू तो कम से कम करनी पड़ेगी। सो व्हाट हैपेंस हियर, व्हेन यू विल राइट सेलेक्ट काउंट सेल, इट विल गिव यू रिजल्ट एज 5 1 2 1 2 3 4 5, but once you will give asterisk, it will give result as 6, that is it will count 6 rows. When we give a particular column with count, it ignores the null value, that is not counted, and when we give asterisk, obviously हम एक रो को काउंट करना चाह रहे थे, even some column may have null value, it will not affect that, it will count all rows. Okay, so ये डिपेंड करता है। मैं Yes. करके दोनों कमांड दिखा देता हूँ। सो 5 आया, अब वहीं पे हम जब एस्ट्रिक करेंगे
तो ये पूछते हैं आपसे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है? Yes, sir. ओके, सो मैं एक बार सिलेबस चेक करूं, और ग्रुप बाई में ये से पहले मैं पढ़ा देता हूं, फिर आगे चेक करूंगा। ग्रुप बाई, नाउ with group by we will use number of functions, okay? And like क्या होता है बेटा कि हमें ये पता करना होता है कि दिल्ली में कितने लोगों को क्या सैलरी दी, दिल्ली की टोटल एम्प्लॉयज को क्या सैलरी दी, कोटा को, इस तरह से हमें सब ग्रुप्स बनाने होते हैं। तो हम ग्रुप बाई का फंक्शन यूज कर लेते हैं, सो दैट हमें इंडिविजुअली सबका सम पता चल जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू बेसिकली हियर, सनिध्या? Yes, sir. Yes, sir. सो ओके, सो मैं यहाँ पे एक दो चीजें आपको क्लियर करा दूं। तो क्वेश्चन पहले लिख लो, राइट कमांड टू डिस्प्ले सम सैलरी ऑफ ईच सिटी। जब शब्द ईच का होगा तो समझ जाना इंडिविजुअल ईच है ना, डिफरेंट डिस्टिंक्ट, तो ग्रुप बाई का फंक्शन यूज होने वाला है यहाँ पर, इतना याद रखना। तो मैंने यहाँ पे लिखा ई सिटी, तो सेलेक्ट विद सिटी नेम, तो सेलेक्ट सिटी कॉमा सम सेल फ्रॉम EMP ग्रुप बाय सिटी। सो अब आपका क्या हुआ, दिल्ली 9545, कोटा 11000 एंड जयपुर 300, ये इनकी सम सैलरी है इस सिटी के हिसाब से। गॉट इट? Yes, sir. अब अगर इसी में हो कि कितने कितने सिटी थे, कोई मुश्किल नहीं है, कॉमा काउंट सिटी, ठीक है? तो उसके साथ ही अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि उनकी सबकी एवरेज सैलरी भी बताओ, तो वो भी कर देते हैं भाई लोग, कौन सी मुश्किल है, AVG सेल, ठीक है? अब अगर ये क्वेश्चन आता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि डिस्प्ले द एवरेज सैलरी ऑफ ईच सिटी वेयर द जॉब इज मैनेजर। अब यहां पर जब ग्रुप फंक्शंस के साथ कंडीशन लगाते हैं, देन यू हैव टू यूज अ क्लॉज हैविंग, लिखो हैविंग क्लॉज इज यूज्ड with group functions, having clause is used with group functions। तो अब मैंने यहां लिखा जैसे select, ये सारी चीजें लिखनी, ग्रुप बाय सिटी, having city equals to कोटा। सो ये हैविंग क्लॉज इस ग्रुप, क्योंकि हमने ग्रुपिंग सिटी के साथ की है, यहां पर आ गया। या अपन कर सकते हैं और सम सेल ग्रेटर देन 3000, अब दो रो आ गए, 5500 and this way you can also use and, between, in, etc. प्रैक्टिस से बेटा, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो यू कैन इजिली डू इट। इतना क्लियर है MySQL? Yes, sir. ओके, एक मिनट होल्ड करो, तो मैं जरा एक बार सिलेबस चेक करूं। मैं यहीं से चेक कर लेता हूं ना, मेरे पास फाइल ही थी। वेट, मैंने शायद अपने फोल्डर में की थी, नहीं है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। लिखना पड़ेगा और क्या, सेव कर लेना चाहिए था।
Revise syllabus. Revised syllabus. Computer science. Revised computer science. Save as desktop पे ठीक है. So just see here 11th वाले से चेक कर लेते हैं. Database concept SQL select distinct group by having SQL sum average count max mean. Now we'll come to the joins, equi-join, joins and all that. And also I will teach you about the foreign keys. तो जितना भी टाइम मिलता है मैं पढ़ा रहा हूँ. ये था 11th और 12th ही था. ठीक है, 12th में ही है ना, कोई दिक्कत नहीं. So we'll come to the MySQL. Next I am going to teach you join, J-O-I-N. Write it. It is used to join or take values from two tables, two or more tables. ज्वाइन का मतलब यही होता है कि जब हम एक दो या उससे ज्यादा टेबल से वैल्यूज को लेते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो इट्स नोन एज ज्वाइन. Written? Yes, sir. Now next definition is equi-join. When we check values from two table on equality condition, it is equi-join. और ऐसे भी लिखे when we get values on equal condition, जो भी लिख लो, मतलब इक्वलिटी आपको लगानी है कि दोनों में जो वैल्यू इक्वल होंगी तभी आएंगी. यूजिंग सर्टेन नंबर ऑफ कॉलम्स, कोई पर्टिकुलर कॉलम भी कर सकते हैं. अब हमारे पास एक टेबल है EMP and select asterisk from EMP. So it has E number common, तो E number ले लेंगे दूसरी वाली पे. तो पहले मैं क्रिएट टेबल करूं, क्रिएट टेबल, स्क्रीन शेयर ना, क्रिएट टेबल. Sir. I will take DPT, department, and then here I will take ENO, INT, ENAME. ENAME की जगह मैं DNAME ले लेता हूँ. DNAME, character 20, character 20, बस करें, क्या जरूरत है. एक और ले लेते हैं, लोकेशन या कंट्री ले लेते हैं. ऐसे सिटी तो उसमें ले चुके हैं. कंट्री वेयर कैर, डिफॉल्ट इसमें भी ले लेते हैं, डिफॉल्ट इंडिया. क्रिएट टेबल DPT NO INT DNAME character to entry country where care DEFAULT default India. कहाँ मिस्टेक हो गई? क्रिएट टेबल DPT ENO INT DNAME character to entry country where care, अच्छा साइज नहीं दिया, where care 20. okay, insert into DPT values. 1, department name, accounts, country, ये अलग कर लो,
क्योंकि अब इंसर्ट ही कर रहे हो तो अब यहाँ पर दो ही वैल्यू ले लो, दो तीन डिफॉल्ट ले लेंगे। दैट इज क्या है, ENO और डी नेम वैल्यूज टू अकाउंट्स की जगह पे आप ले लो सेल्स, कंट्री मत दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही बना रहा हूँ। यहाँ पे 3 कर दो, इसको कर दो प्रोडक्शन, ठीक। फिर एक और ले लो DPT वैल्यूज फॉर प्रोडक्शन के बजाय आप ले लो प्रोडक्शन के बाद यहाँ ले लो USA, ठीक है। बस अब ये हो गया। तो अब अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे DPT, सो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये मैच करना चाहिए। So what I will write command here for join, equi-join, where the condition is checked for equality is known as equi-join. When a table is joined on equality condition, it is equi-join. देखो लैंग्वेज बदलती है मगर मतलब वही है। When a table is joined on equality condition, it is equi-join. Select asterisk from EMP, DEPT, where अब एक और काम करो, प्लीज नोट इट डाउन। यहां पर EMP के बाद मैंने एक छोटा सा नाम लिया E, सो दिस इज नोन एज एलियास टेबल नेम। जैसे कॉलम के एलियास लेते हैं, सेम वे एलियास मीन्स अ टेम्परेरी लेबल और अ डिफरेंट नेम, बट दिस इज बेसिकली अ टेम्परेरी लेबल। एक्चुअल जो नेम है टेबल का EMP है, इट्स अ टेम्परेरी लेबल और एलियास नेम फॉर द टेबल। एलियास मीन्स उपनाम, अनदर नेम, ओके। ALIAS, alias, DPTD, where E dot EM, where E dot EMPNO is equals to D dot DPTNO. Pause. Yes, ma'am. नहीं मेरी मैम, ये 11 12 की फिक्स है क्लास, ये क्लास फिक्स है यहाँ 11 12। नहीं मेरे अलग से अलग क्लासेस भी चलती है ना, मैं यहीं पे लेता हूँ। हाँ मैं कम से कम 12 बजे तक तो हुई हूँ। हाँ। मैंने इसीलिए इसको अलग करवाया था, मैंने कहा मेरे साथ मैं सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरे साथ नहीं होता। मेरा लाइव क्लास है। ओके सानिध्य, select asterisk from EMP DPTD where E dot EMP is equals to D dot DPTNO। तो E is the alias name, चाहो तो आप EMP भी लिख सकते हैं, ये भी DPT। अननोन कॉलम ENO था, सॉरी ENO सॉरी ENO था, द नेम इज ENO, मैंने EMP ENO, और यहाँ पे भी ENO ही नाम था ना? यस सर, दोनों जगह ही Yes. So now see here, 1 is matched with 1, 2 is matched with 2, 4 is matched with 4, 3 is matched with 3. So it is equi-join. जो मैच नहीं हुआ उस वाले रो को दूसरे टेबल से उसने छोड़ दिया। अब ऐसा है कि इसमें 1 2 3 4 है, उसमें 1 2 3 4 5 6 है, इसमें हो सकता है 10 12 13 है, उसमें 10 12 13 नहीं है, किसी में भी जो भी मैच नहीं होगा वो वैल्यू नहीं आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सानिध्य कोई डाउट है तो पूछो। ज्वाइन, अगर ज्वाइन मतलब नॉर्मल ज्वाइन यूज करेंगे जिसके अंदर अगर अपन को वो वैल्यूज भी चाहिए जो दूसरे में नहीं है, सिर्फ एक में ही है, तो फिर क्या करेंगे? दूसरे में नहीं है तो उसके लिए लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन होती है। मींस अगर उस वैल्यू को लेके आना है फर्स्ट टेबल की सारी वैल्यू जो कि मैचिंग नहीं है, तो यस सर।
दूसरी जो मैच हो, सपोज इसके लिए दो फंक्शन होते हैं, लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन। तो लेफ्ट ज्वाइन से क्या होता है कि लेफ्ट वाली टेबल की सारी वैल्यू आती है, राइट में नल आ जाती है। इसी तरह वाइस वर्सा, लेफ्ट एंड राइट की। ठीक है, तो वो एक अलग Yes, sir. कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन। आई डोंट थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, फिर भी मैंने आपको बता दिया। सो उसके लिए लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन यूज करते हैं कि आपकी एक टेबल की सारी वैल्यूज आ जाए, जो मैच नहीं है वहां पे नल आ जाए। तो इसके लिए लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन दो अलग ज्वाइंस है, उनको यूज करते हैं। तो अभी आपकी जो लेफ्ट टेबल है ईएमपी है, राइट टेबल डीबीटी है। गॉट इट? Yes, sir. ओके। अब यहाँ पे एक लास्ट मैं सोच रहा था ले लूं या अगली क्लास में लूं। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। सो अगली क्लास में मैं यही MySQL लूंगा और इस पे कुछ क्वेरीज क्वेश्चंस करा के आई विल कंप्लीट दैट, एंड देन आई विल गो फॉर सम मोर पॉइंट्स, दैट इज CSV है, फिर और भी चीजें हैं। अब ज्यादा सिलेबस बचा नहीं है, सो आपको फटाफट मैं कंप्लीट कराऊंगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय। मेरी एक्चुअली 11 o'clock हो चुका है, मेरी एक क्लास और है, so I'm going to take that class. Okay beta, take care, bye, Okay, we'll sir. meet in the next class. Take care, bye.